Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। Welcome to all of you at the UDEV's orientation batch 4. Thank you, sir. So, firstly, we start with our motive for this internship, our things we continue in that internship. So, firstly, I introduce myself with all of you. My name is Usama Aslam. I'm founder and CEO at UDEVs, and I am leading this program of that internship. Uh, Basically, our company based on, like, we give services as well. We have our own clients, UK and US based clients, as well as we have providing job opportunities after training, after training our interns very well through that program. Okay, so with me we have the team, our co-founder, our project manager, our senior developer, as well as we have senior business developer. Okay, so this is our company introduction, and now I want that all of you one by one introduce yourself and tell me that what are your proper intentions and your goals, what you want to learn from this internship, and what are your future goals for how you see yourself in the future in this field. So one by one you should introduce yourself and just tell me that, just one by one. Can I start? Yes, you can start. Okay. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नजीबा अरशद एंड मैंने यहाँ पे इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि मैं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाले स्किल्स इन्हेंस करना चाहती हूँ और मैं इन फ्यूचर अपने आप को एज अ फ्रंट एंड डेवलपर प्रेजेंट करना चाहती हूँ ताकि मेरे स्किल्स इस इंटर्नशिप से पॉलिश होते रहें और मैं एक प्रोग्राम्स वगैरह अपने से खुद को डेवलप करूँ और दैट्स इट। Okay, now next one is Aliza Shahid. Please, you can continue. Sania Shaukat, please, you continue. My name is Shazam and I am अस्सलाम of वालेकुम। Okay, Sania, yes. My name is Sania, and I Okay, joined this internship to specially improve my logic building skills in coding. okay, And I also want to gain experience by working on real world projects. okay. So Sania, please, you can you share your past experience in our, like, you can attend our classes of last internship as well. So please share your experience as well. What was your personal experience with us? Like in I think you took just 2 or 3 classes. Yes, So share your experience. What's your experience and tell all of them what's your experience with us in these classes. sir, experience was very good. Okay, Everyone is so cooperative. okay. So next one is Fariha. Alishba Chaudhary. Assalamu alaikum everyone. Welcome salam. I am pursuing software engineering, having fifth semester,
and I am interested in development. And in this internship, I have applied for Munstack development, and I want to polish my skills and enhance my skills during this internship, and want to continue my career in development. Okay, sure. Isha Salim. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I'm Isha Slim. I'm recently graduate in software engineering and currently I'm looking to start out my career in web development. So that's why I just want to get experience in real world projects. Okay, Hamza Zulfikar. अस्सलाम वालेकुम Walaikum salam. myself Hamza Okay, एक्चुअली मैं फ्रंट एंड को यूडेव्स के साथ करना चाह रहा था इंटर्नशिप क्योंकि बेसिकली मैं इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ करियर चूज़ कर रहा हूँ और ताकि मैं फर्दर जो है वो प्रैक्टिकल लाइन में एक रिस्पॉन्सिव स्क्रीन बना सकूँ यूआईज बना सकूँ जो कि रियल वर्ल्ड को मीट करें okay, okay. सो नेक्स्ट वन इज़ अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया साथी बदर. आप प्लीज़ अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा और आप बताइएगा कि व्हाट आर योर गोल्स टू इस इंटर्नशिप से आप क्या सीखना चाहती हैं और अपने आप को कहाँ देखती हैं आने वाले टाइम के अंदर. प्लीज़. किंजा मुजाहिद. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम किंजा मुजाहिद है और मैं ये इंटर्नशिप इसलिए करना चाहती हूँ ताकि जो मैंने सीखा है या जो भी मेरी स्किल्स हैं वो इन्हांस हो सके और मैं रियल वर्ल्ड में उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ और मैं इसी को अपना करियर बना सकूँ. ओके, आमना नूर. Amna, your voice is not audible. I think you have a mic problem, or I think you have an internet problem. No problem. Hamna Riaz. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हमनायाज. मैंने ये यूडब्स को इसलिए चूज किया है इंटर्नशिप के लिए कि मैं जो अपना कोर्स किया फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का उसमें मजीद ग्रिप हासिल कर सकूं, अपनी स्किल्स को मजीद इम्प्रूव कर सकूं और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकूं और मैं अपना करियर बना सकूं Okay, okay. और इंशाल्लाह मैं Inshallah. अच्छा अपना दूंगी. Inshallah. Inshallah. So next one is Misam Abbas. Assalamu alaikum. My name is Misam Abbas, Sayyid Misam Abbas, and I want to do this to get a handful experience and to learn during my studies, and in future I see myself as a front-end developer building impactful user interfaces. Okay. Okay. I understand. Next one is Alishba Riaz. Assalamu alaikum. I am Alishba. I have done my bachelor in mathematics, but I have interest in full stack development. I have some basic knowledge about full stack, but I want to polish my skills through this Okay. internship. Okay. So that's why I joined this program. Sure. Next one is we have Halima Sadia. Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is I am Halima Sadia and I'm a fifth semester student. Recently, I have developed web project using Munstack. Okay. So I have joined this program. So I want to get more experience, more real world experience. Okay. So hopeful. Okay. Understand. So मैं चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि व्हाट इज़ आवर रोड मैप थ्रू आउट दिस इंटर्नशिप. ओके,
हम लोग किस तरह से किस रोड मैप को फॉलो करेंगे और थ्रू आउट द इंटर्नशिप क्या चीज़ें हम लोग ग्रिप करेंगे और कैसे लेके चलेंगे. आई एम शोइंग यू जस्ट वन file. According to our internship program, we have proper and clear roadmap. I am showing to you. Just a minute. So I am showing you a roadmap of front end as well as full stack development. This is combined roadmap, and I am showing you. I am showing the screen with you. Just a minute. So this is our roadmap. We are going through this internship. Firstly, we have program objectives. So what are the program objective? This program is designed to take students from fundamental to production level full stack development or front end development. Okay, the roadmap follows industry aligned learning path, emphasizes weekly practical tasks, and concludes with 4 weeks of real time individual full stack project and front end project using Mindstack and front end plus PostgreSQL with proper MVC architecture. MVC means model, views, and controllers. Okay, model and controllers working on the backend. Model and controllers are working on the backend, and views are on the front end. That showing to the user. Like a user can see on the screen, like we have a Facebook. So on the front end we have views, and on the back end we have model and controllers. Model define the structure, or you can say it's model. Like if we example of that, if we make a house, so before making the house we have a model of that house. So this model defines the architecture or working of that. Like if we have if I want to define a user model, so in user model I have like if anyone sign up for the Facebook, you all of you have a Facebook accounts, and all of you sign up recently or in past for the Facebook. So you should firstly apply for that. Like you have you enter your first name, you enter your last name, you enter your password, you enter your email. So these fields are called their model. The things you defined in the model, it's the basic structure of that on the back end. And on front end we show it. Like front end we have a views. Okay, so next thing is that we have starting points for the foundational path. We have programming languages or programming fundamentals, that is called C++ and OOP. We started from C++ and OOP. In many organizations and in many courses they started from directly HTML, but this is not right. Okay, because C++ and OOP are their backbones. You start it from that. If you have great concept in that, you should do work correctly, do work rightly. Okay, so in front end basics we have HTML, CSS. In UI frameworks we have Bootstrap or Tailwind CSS. Okay, then we have front end libraries, that is React.js and Next.js. And there is, what is the difference between React and Next? React is a, you can say first, React can comes first, and Next.js is its advanced form. Okay, like you can say there is a difference between, minor difference between them, like difference in structure and different in other things. So no, not a big difference. So we have like in front end we have on React we have, furtherly we have Redux toolkit. Redux toolkit is, it's basically used for managing your components or managing your React things globally in your project. So this is basically a store. You can say Redux is basically a store. Then we have state management. State management is basically
you can say state management. What is state management? This is a hook of React, an important hook of React. And after that we have backend development. This is just for front-end developers, like till Redux toolkit. Then we have for backend developers, like for full stack developers, we have backend development. There we have framework Node.js, Express.js, as well as database PostgreSQL. We have two type of databases. One is SQL and other is NoSQL, like that is MongoDB. So for our industrial type programs, for our industrial type projects, we use PostgreSQL because this is more reliable API interfaces and more reliable responses, and it's managed data widely. Okay. And MongoDB doesn't manage this type of data because MongoDB is non-relational database. All of you can studies about relational and non-relational things. Like in SQL we have you can say in SQL we have schemas, rows and tables. Data stores in the form of schema, rows and tables. So that's why we're using SQL. Then we have full stack CRUD application. Like in front end we also follow the CRUD. In back end we also follow the CRUD. If anyone want to know how my application and how my page is complete, you should just you just see that your CRUD is completed on that page. CRUD means create, read, update and delete. Okay. Like if you I give an example of that. If you have making a Facebook ID, you should register yourself. It's mean you create yourself, you create your profile. Update means read, R for read means when you log in your profile, you just go to your feed, you just go to your stories. So it's mean you're reading your profile. Then you want to update your number, your email, so this is called read. And you want to update it's mean update. And you want to delete anything, like you delete your account, you delete or delete any post, that is called delete. So every page we have a CRUD in front end as well, in back end as well. Okay. So then we have this in weekly wise task. Okay. These tasks we giving by weekly. Week 2 we have in week 1 we complete our introduction to programming C++ with OOP. Then we have C++ syntax and structures, variables, data types, operators, conditional statement, loops, functions, introducing to OOPs, classes and objects, encapsulation, abstraction, inheritance. These are called the 4 pillars of OOP. Then according to that we give you a task of that. Okay. Into second week we move towards the web fundamentals, that is HTML and CSS, HTML5 structure and semantic tags. Okay. Then we have forms, inputs, elements, CSS basics and box models, flex models, and also as we have a bootstrap grid system. Okay. Bootstrap grid system is very important in the front end. It's just used for the responsiveness of your website and many other things. It's also provide many libraries and many other things to enhance your website. Okay. It is a part of styling. So according to that we give you a weekly task. Then we have week 3 UI frameworks like Bootstrap and Tailwind CSS. So if anyone want to use Bootstrap, like see what is Tailwind CSS? Tailwind CSS is just a mixture of C++ and Bootstrap. It's an advanced form. Okay. If anyone want to use Tailwind, they can use Tailwind. If anyone want to use CSS Bootstrap, they can use CSS or Bootstrap. Okay. So we cover in that Bootstrap grid system as well, component and utilities as well, Tailwind CSS setup, utility first styling, responsive UI with Tailwind. After that we doing the task related that converting the static website into professional, like this task. After that we give to you. Then week 4 we have JavaScript, React.js basics. Okay. In that we completing that we cover the topics JavaScript, ES6 concepts, DOM manipulation, React.js introduction, JSX. In JSX and JS is almost same, but in JSX we have HTML file as well, and JavaScript
ES6. What is ES6? ES6 is a version of JavaScript. Okay, we can currently use the version of JavaScript is ES6. Then we have components, props, states. Then regarding to that, we have a task. In week 5, we start React.js advanced hooks and routing. What are the hooks? Hooks are the things like we have use state, use effect for all major works. Okay, use context, use ref. These are the hooks. Then we also have a custom hook as well. Why we use the use state? Use state, the purpose of use state, if we want to update anything in our website or in our component, we use state. The example of that, if all of you do the online shopping, like if we go on the shopping website, we you just buying anything, you should click on add to cart functionality. Like when you clicking on the add to cart, the it's changing its states again and again. Like when you start click on add to cart, it's plus their amount, when to plus and minus. So here the states changes again and again, and the concept using here, that is C++, I++, and I minus minus. Okay, so with the use state, we're using this concept. In use effect, you're showing your data in the front of user. Use effect is just basically used for fetching the data from the backend and showing to the user on the UI. Okay, so the other things we use in the advanced level, this I will tell you later when we start. We have Redux toolkit, as well as I tell you that this is basically a store. In this we managing these states globally in our project. Okay, then we have backend. In backend we cover Node.js, Express.js, framework, REST APIs design, middlewares, authentication basics, like authentications, like we have a barriers for all the user. If anyone want to log in, they have their own like you can say barrier in the form of tokens. Okay, then we have in week 8 we use the PostgreSQL database setup with MVC architecture. These things are doing in that. We have PostgreSQL basics, table relations, constraints like table and rows. I also tell you SQL queries, CRUD, create, read, update, delete, correcting PostgreSQL with Node.js, and we have a MVC architecture, model views and controllers. Okay, in the 9 or 10 week we have moved towards a real-time project. We assign you a project. By doing all those things, we assign you a big project at the end, and you do the work on that. In that we have project requirements, React.js frontend, Next.js frontend, and we have Redux toolkit statement. These are the requirements of that, and we work on that. This project add in your personal portfolio to enhance your all the things, to enhance your GitHub, to enhance your all the skills wise, like your portfolio, your GitHub profile, your resume, your LinkedIn profile as well. And we also tell you how to hunt the clients on the other platforms, how to get the client, how to get the jobs, how we like how we may make us more effective to getting any opportunity, and how to crack the interview. Okay, we also prepare you regarding as well for the interview. And the other thing, for all those things, you make consistent with yourself and be sincere with yourself first. Okay, and in this company, in this program, we are not burdenizing you. Okay, we cooperate with you in anything, but the thing is that you firstly sincere with you. We do all the things, uh, co- uh, all compensations with you at any point, inshallah. Okay, so the thing is that we're using all of those things in that. This is our roadmap, and I share also these roadmaps in the group after the class as well. We have two roadmaps. One is related to full stack development, and other is related to front end development. So till now, just please tell me if you have any question.
all of you, related anything. Yes, please. Arishba Riaz. सर एक क्वेश्चन है कि लाइक अब बेसिक्स तो ये वाली सारी चीज़ें मैंने भी कवर की हुई हैं, बेसिक तो आती हैं, मेन इशू हमें प्रोजेक्ट बनाते वक्त आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम हमें क्या मतलब देखें प्रोवाइड किया जाएगा, हमें कोई देखिए हेल्प आपसे मिलेगी? देखिए अब उसमें चीज़ें हम कैसे करवाएंगे आपको, हम लोग ये बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, मैं इस चीज़ से ये नहीं कहता बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है। ठीक है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज फॉलो की जाती हैं। आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेथडोलॉजीज पढ़ी होंगी। वी हैव वाटरफॉल मॉडल, वी हैव एजाइल मॉडल, वी हैव स्क्रम मॉडल, पढ़ी है ना आप लोगों ने। तो ये मेथडोलॉजीज होती हैं, इसको हम यूज़ करते हुए देखते हैं कि प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है। ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि इसकी फाइल स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इसका ये चीज़ ऐसे होगी। इसमें हमने पढ़ना नहीं है, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सिटी, दिस इज़ नॉट अ कॉलेज, हमने इसमें प्रैक्टिकली वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले आपको स्क्रैच से बिल्कुल एक पॉइंट से लेके चलेंगे ताकि आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको बर्डनाइजेशन फील ना हो। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग आपको प्रॉपरली फ्रंट एंड और बैक एंड वाइज जो फुल स्टैक डेवलपर उनको फ्रंट एंड का पूरा रोड मैप, उसके साथ उसका पूरा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आपको देंगे, यू कैन फॉलो दिस इन ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन मेक ऑल द बिगर एप्स इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। ठीक है, तो हम लोग आपको हर लिहाज से लेके चलेंगे, जितना हमारे एंड से होगा वी विल डू फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, और बाकी चीज़ मेनली यही होती है कि यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर सेल्फ। ओके, आप सबको कोई इशू होता है, कोई मसला आता है, इफ़ एनीवन से आई एम ज़ीरो इन दिस फील्ड, मैं उसको ज़ीरो से स्टार्ट करवाऊंगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हम लोग भी सीख के यहाँ पे ऐसे ही आए हैं, ज़ीरो से स्टार्ट से सीखा है, सीखते 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 इस तरह से आए हैं। कोई भी कहीं से सीख के नहीं आता। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, इस चीज़ को करवा रहे हैं, तो हम लोग कोई चीज़ सोच के करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं कि यार आप जितने भी बच्चे हैं, लाइक जो चीज़ें मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, nobody want to face these things in the future। हर किसी को हक है कि वो सीखे और आगे ग्रो करे। ठीक है, हर किसी को करने का हक है। तो हम लोग जब आपके साथ चलेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसे डेवलप होगा, वो ऐसे डेवलप होगा। ठीक है, अब कंपनीज कहती हैं कि बच्चे के पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? जब तक कंपनी एक्सपीरियंस नहीं देगी, एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, जस्ट हलीमा जस्ट अ मिनट, जस्ट आई एम आपका क्वेश्चन सुनता हूँ। हम लोग कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं कि जी आप पेड इंटर्नशिप क्यों नहीं देते। मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूँ। अनपेड क्यों है? अनपेड इसी वजह से है कि देखें, हम लोग मुझे इस चीज़ का ये आइडिया है कि हम लोग आपसे अपना काम नहीं करवा रहे, हम लोग आपकी लर्निंग को रोकना नहीं चाहते। जब आपको कोई कंपनी पे करती है ना, तो वो आपसे अपना काम करवाती है। वो उसको नहीं आपसे कोई भी है कि आपको कुछ आ रहा है नहीं आता, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, वो केयर नहीं करते किसी की। आपको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपका सरदर्द है, उनका नहीं है। ठीक है, वो आपको कहेंगे अगर आप हमारे से पैसे ले रहे हैं, स्टिफन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, आप हमारा काम करें, आप सीखना आपका वहाँ पे करें, ख़त्म हो जाता है। तो मेनली हम लोग जिस तरह स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं, हम लोग उनको उनके पर्सनली बिल्ड करते हैं, पहले उनको एज अ टूल मार्केट के लिए रेडी करते हैं। मीन्स के आप पेपर देने जाते हैं, पेपर से पहले मुझे ये बताएं, पेपर जब देने जाते हैं आप पेपर की तैयारी पहले करते हैं कि पेपर के पहुंचने एंड पे करते हैं? पेपर से पहले करते हैं। पूरा साल आप लोग तैयारी क्यों करते हैं? ताकि एट द एंड ऑफ पेपर हम लोग बिल्कुल रेडी हों, हमें जो क्वेश्चन पूछे हम उसके आंसर फटाफट दें। तो मेनली एग्जाम्पल इज़ दैट कि आप अपने आप को पहले रेडी करते हो एक चीज़ के लिए, पहले उसकी प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग एंड रेडीनेस एंड योर कंसिस्टेंसी एंड योर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट फील्ड। ओके, आप जितना कंसिस्टेंट हो, आप जितना अपने साथ सिंसियर हो, आप जितना मुझे अपने साथ प्रॉब्लम शेयर करोगे, यू वुड बी ग्रेट इन दैट। एंड फ्रॉम माई साइड, मेरे से जितना होता है आई विल डू फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी तक यहाँ से इंटर्नशिप करके जा चुके हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट 3 बैचेस थे, ये हमारा ऑलमोस्ट 4th बैच है, 3rd बैच अभी चल रहा है और ये 4th बैच जो है। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को इस तरह से काम करवा रहे हैं, इस तरह से लेके चल रहे हैं।
हम लोग स्टूडेंट्स को ये नहीं कहते कि आपके 2.5 मंथ्स कवर हुए हैं, अगर आपका उसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको हम लोग नहीं करवाएंगे। हम ऐसे करते ही नहीं हैं। हमें पता है कि टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग जस्ट ये चाहते हैं कि आप लोग सीखें, आप लोग इस चीज़ को लेके चलें, हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलें, आप हमारे साथ चलें, ठीक है। बाकी ये है कि मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ, इन कमिंग ईयर्स इन चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि ये इज़ सच टाइप ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हमारी फील्ड, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी अवेयरनेस नहीं है। वो जस्ट आप बिज़नेस के लिए करते हैं, एंड वी आर डोंट डूइंग फॉर द बिज़नेस, ठीक है। हम लोग अगर इस चीज़ को लेके चलेंगे आगे, अभी रिमोट इंटर्नशिप्स का मतलब ही उल्टा निकाल दिया वो लोगों ने। उसमें करते क्या, कुछ रिमोट इंटर्नशिप वाला प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, वो करते हैं कि आपको स्टार्ट में ये कोड अल्फ़ा हो गया, डेवलपर्स हब हो गया, और भी 3-4 इस तरह से हैं। आप लोगों को स्टार्ट में एक इंटर्नशिप और एक आपको दे देंगे, वो आपको स्टार्ट में एक डॉक्यूमेंट दे देंगे कि आपने ये करना है, 2.5 महीने बाद आपको कहेंगे कि आप जमा करवाएं और इस तरह से पे करें और ये कुछ करें, तो आपको आपका ये मिल जाएगा। तो उसमें आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा, 2.5 माह ज़ाया है। पैसे, आपके पैसों का मसला नहीं होता, पैसे फिर आ जाते हैं, मसला मेन होता है कि आपका टाइम नहीं आता। जब टाइम नहीं आता आप फेड अप होते हो, फेड अप होके क्या होता है, एट द एंड आप कहते हो कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी हुई है। बेशक आप में पोटेंशियल हो, बट आपके साथ चीज़ें इस तरह से हो गई होती हैं कि आपको अपने आप पे एतबार नहीं रहता। आप समझते हो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यू गॉट द डिप्रेशन इन योर माइंड। जब डिप्रेशन आता है, यू कैन से कि क्विट दैट फील्ड, हम लोग कोई और जॉब कर लेते हैं। और अक्सर औकात इंटर्नशिप्स में भी ऐसा ही होता है, वो आपको पे करते हैं, अपना काम करवाते हैं और अच्छा खासा काम करवाते हैं, और आपको होता ये है कि आपको पता है कि मैंने पैसे लेने हैं, तो हम लोगों को काम किसी ना किसी सूरत करके देना है। तो आप चैट जीपीटी के इतने डिपेंडेंट हो जाते हो कि आपकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो 3 माह समझ लो ऐसे ही है, जहाँ पे आपने ऐसी इंटर्नशिप की है जहाँ पे आपकी सोचने की सलाहियत ख़त्म है ना, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप डिपेंडेंट हो गए एक चीज़ के। आप उन 3 माह के बाद जब इंटर्नशिप करते हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आपने अपने आप को किस चीज़ में अच्छा किया है, अपने आप को किस चीज़ में स्पेशलाइज किया है। ठीक हो गया। वो 3 माह के बाद लेटर मिल जाता है, बट वो लेटर की कोई वैल्यू नहीं होती। वो ऐसे ही है जैसे यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, और वो लेटर भी वैसे ही है कि वहाँ पे भी 4 साल पढ़ा ही है, कुछ सीखा नहीं है। यहाँ पे भी हमने 3 माह चीज़ें जो उसे देख देख के की हैं, कुछ सीखा नहीं है, कुछ नया सीखने को मिला नहीं है, लर्निंग रुक जाती है। ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से चलते हैं। एंड आई टेल टू ऑल ऑफ़ यू दैट मेरी ग्रेजुएशन इतनी पुरानी नहीं है। आई एम ग्रेजुएटेड इन 2023। ओके, my batch is from 2029 to 2023, and I started my career in 2021. Sorry, I started my career in 2021. Okay, उसके बाद I did the jobs on the senior level till 2023, and after that I make my own company. Okay, and the I am the founder, and with my the co-founder with me, she is my wife. Okay, she is also the CS student as well. Okay, तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों ने भी सीखा है, चीज़ें की हैं, चीज़ों को अपने साथ एक सिंसेरिटी, हमने भी बहुत सी चीज़ें फेस की हैं। मैं ये नहीं कहता हमने कुछ नहीं फेस किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं। ठीक है। मेनली चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें, चीज़ों को लेके चलें। मेनली 3 चीज़ों को आप अपनाएं। यू शुड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दैट इज़ योर पेरेंट्स रिस्पेक्ट, उसके बाद नमाज, उसके बाद आपका काम, ये 3 चीज़ें। एंड योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के जो फ्रेंड होते हैं, दैट आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। आपको कोई मुश्किल आती है, कोई काम आता है, योर पेरेंट्स आर योर गुड फ्रेंड्स। वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको लेके भी चलते हैं, हर पॉइंट के पे आपके साथ खड़े होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह भी आपका साथ देता है, और अल्लाह भी आपको बाजू पकड़ता है, आपको साथ लेके चलता है। आपको नहीं पता लगता कि आप किस टाइम पे, किस पॉइंट से किस जगह पे आ गए हो। ठीक है। तो मेनली ये चीज़ होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ और इसको लेके भी चलता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द हलीमा सादियाज़ क्वेश्चन। हलीमा, आपका क्वेश्चन था, आप प्लीज़ मुझे बताएं। Sir, it looks interesting and hopefully we learn a lot
in this duration. इंशाल्लाह। So, इंशाल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये रिडक्स रूट किट के बारे में था। अच्छा, रिडक्स टूल किट बेसिकली होती ये है कि देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी इसको आपको ना इसकी रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मेरी एक है फूड चेन है। जैसे आप एग्जांपल ले लें केएफसी की। केएफसी की फूड चेन है। मैंने केएफसी की एक ब्रांच बनाई, ठीक है। मेरे पास पहले एक ब्रांच थी, उसको मैनेज करना आसान था, मैं सारा कुछ मैनेज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी आस्ता आस्ता केएफसी की वैल्यू बढ़ गई, मेरी केएफसी की दो से एक ब्रांच के बजाय 3 हो गई। उसको भी मैनेज करना आसान है, उसको आपस में इंटरलिंक कर दिया हमने कि ये मैनेज हो सके एक टाइम के ऊपर। अब मेरी पूरी लाहौर के बजाय इंटरनेशनली मेरी चेन्स हैं, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? उसको मैनेज ऐसे करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजीज। जब हम फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजीज करते हैं तो वो कनेक्ट कैसे होती हैं? वो एक एक उनके ऊपर एक बड़ा हेड डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसको आप स्टोर कह सकते हैं, ठीक है। वो स्टोर उनको मैनेज कर रहा होता है कि आपने किस ब्रांच में से क्या चीज़ कितनी चाहिए, कितनी लेनी है, उसने कहाँ से क्या डाटा उसको चाहिए। तो ये रिडक्स टूल किट पूरे प्रोजेक्ट में करता है। बैकएंड से डाटा फ्रंट एंड पे शिफ्ट करता है, ठीक है। तो मेनली रिडक्स टूल किट जो सा एज अ स्टोर काम करता है, उनके दरमियान एज अ स्टोर काम करता है इंटरलिंकिंग और कनेक्शन के लिए। तो रिडक्स टूल किट इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन दैट। आप समझ गए इस बात को? यस सर, ठीक वो है, ह- जी एक बताएं। हमने वेब में भी एक पढ़ी थी, हम्म। फ्रंट एंड और बैक एंड को जी बिल्कुल जोड़ने के लिए। बिल्कुल। ये इसमें यही होता है। इसमें आपके बेसिकली पे लोड होते हैं। पे लोड होता है कि आपका डाटा पे लोड की फॉर्म में आता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसके हवाले से, जो आपका क्वेश्चन किया मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है आपको। अब आप इसको रियल टाइम अपने रियल टाइम जो सी उसमें भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। सर जो हमने यूज किया था वो मोंगूज था। जी जी, आपने मैं ये बताऊँ, आपने जो मोंगोज यूज़ किया आपने की थी मोंगो डीबी यूज़। मोंगोज होता है, इसको बोलते हैं हम ORM, ठीक है। लेकिन उसमें रिलेशनल मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है। अब हम लोग जो SQL में यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड, वहाँ पे मोंगोज था, यहाँ पे होगा सेक्विलाइज, ठीक हो गया। यस सर। उसको बोलते हैं ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजमेंट। ये आपकी रिलेशनल डेटाबेस में यूज़ होता है रिलेशन बनाने के लिए, कि वन टू मैनी और मैनी टू मैनी के रिलेशंस बनाने के लिए, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपका क्वेश्चन ये था कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आया जी, मैं यहाँ पे खोलता हूँ दराज। आई हैव दराज, ये दराज.com आ गया। एंड मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पे काम कैसे हो रहा है? मैं बैकएंड कैसे देख सकता हूँ? मुझे तो बैकएंड से डाटा आ रहा है। आई जस्ट सिंपली लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेना, ठीक है। इंस्पेक्ट आपने खोला, ठीक है। इंस्पेक्ट के अंदर जस्ट अ मिनट, इंस्पेक्ट के अंदर सारा कुछ आपको नज़र आता है आपकी वेबसाइट का, कि हम लोग इसको कैसे चला रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे देखते हैं कि डाटा कैसे आ रही है? नेटवर्क में जाते हैं, हमारा फ्रंट एंड बैक एंड, ये फ्रंट एंड यहाँ पे शो हो रहा है, हम यहाँ से इसके एरर्स वगैरह को रिजॉल्व करते हैं। वो मैंने देखना है कि इस पर स्टाइलिंग क्या है, तो मैं जस्ट इसको इस तरह से करूँगा, ये स्टाइल आ गया मेरा इसके पास, ठीक है। हम लोग अपने एरर बग्स यहाँ से रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इनको देख के रिजॉल्व करते हैं। आपने अपने इंस्पेक्ट को बहुत अच्छा रखना है, इंस्पेक्ट से ही सारी चीज़ें निकलती हैं आप लोगों की, ठीक है। और उसके बाद अब आप देखते हैं नेटवर्क, ये देखें कि नेटवर्क में आपका डाटा आ रहा है, ये सारी API फैचिंग। यहाँ पे ये स्टेटस आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे होते हैं, 200 की रिक्वेस्ट आती है, इसका मतलब स्टेटस ओके है, ठीक है। ये इसका स्टेटस है, मैं इस पर जाता हूँ, ये देखें स्टेटस ओके, ठीक है। ये चीज़ होती है इसमें, ये प्रीव्यू होता है, ये हमारा रिडक्स टूलकिट काम करती है, ये डाटा जो लेके आती है, ठीक हो गया। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ इसमें डाटा कैसे आता है। मैं इस पर जस्ट इसको करता हूँ ख़त्म। मैं करता हूँ इस एयरपोर्ट्स पे क्लिक। अब ये देखें, जस्ट अ मिनट, मैंने एयरपोर्ट्स पे क्लिक किया, साथ ही API हिट हुई हैं, ठीक है। अब APIs कहाँ क्या हिट हुई हैं? वो यहाँ पे ऐसे हिट हुई हैं कि ये इंडेक्स आया है इसके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये API हिट हुई है, ये गेट कॉन्टैक्ट इन्फो, ये डाटा आ रहा है, ये देखिए, ये होता है API के थ्रू, ठीक है। ये होता है रिडक्स के थ्रू जो आपका डाटा ये लेके आता है,
ठीक हो गया, ये सक्सेसफुली है, ये बैक एंड से डाटा आ रहा है और फ्रंट एंड पे इसको शो कराता है। वो बैक एंड से ऐसे आता है, फ्रंट एंड में आपको व्यू की फॉर्म में शो होता है। ठीक हो गया, ये आपका डाटा इस तरह से आ रहा है। मॉड्यूल में क्या आ रहा है, इसमें आपकी यूज़र आईडी क्या जा रही है, मॉड्यूल में क्या चीज़ें, ये सारी एपीज एट अ टाइम रन कर रही होती हैं। हेडर्स में क्या जा रहा है, हेडर में आपका स्टेटस ओके जा रहा है। अब ये सारा कुछ एक पेज पे हमारी डिफरेंट एपीज होती हैं। यहाँ पे गेट ऑल यूज़र, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें एक टाइम पे काम कर रही होती हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ इस तरह से है। ये पेलोड होता है, ये पेलोड की फॉर्म में डाटा आता है आपका। ठीक हो गया, तो इसको हम इंस्पेक्ट को अपना बहुत अच्छा रखना है आपने। इंस्पेक्ट एलिमेंट इज़ अ मस्ट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर सी एस फील्ड या सी एस के प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। इंस्पेक्ट के अंदर आप हर चीज़ को हर तरह से वो कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट का एलिमेंट खुल जाता है। यहाँ से आप उसमें देखें, अब ये बटन है, ये बटन की स्टाइलिंग हुई हुई है, ये देखें स्टाइल हुआ हुआ साइड पे। ठीक है, इसमें आप इसको देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये बटन है, आई एम शोइंग यू दैट के ये आई थिंक इमेज लगी हुई है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ उसके बजाय। ये भी इमेज लगी हुई है, कोई ऐसा बटन नहीं आ रहा जिसके ऊपर कस्टम स्टाइलिंग हुई है। वो मैं आपको दिखाता हूँ W3 स्कूल से। We have W3 schools, and here we go on the W3 schools. We have like, we open the C plus CSS as like, we have these buttons. Okay, these are the buttons. So I can open the inspect here. I just track this, okay, what are these and what they are styled in here. Here this is styling, so I just remove their color. I just remove their color. The color is removed. Okay, I simply here I just give the color red. Color is red. Okay, so here you can do all the styling by for testing purposes, but ओरिजिनल कोड आपकी फ़ाइल के अंदर ही होगा। ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं, यहाँ से आप हम लोग उसको ट्रैक करते हैं कि हमारा मसला कहाँ आ रहा है, फ्रंट एंड का ऐसे और बैक एंड का यहाँ से नेटवर्क में। ठीक हो गया, ये देखें ये डाटा आ रहा है, इसमें आईडीज़ के थ्रू आ रहा है, अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डाटा आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें इस तरह से है। सो इंशाल्लाह if you have any question related or other things, we can more discuss in other classes and in our further classes inshallah. So the thing is that कि आप लोगों को ये चीज़ें करवाने का और ये चीज़ें किस तरह से करवाई जाएंगी, I defined all the road map properly to you. I think all of you understand these things. So if अगर फिर भी किसी को confusion है, कोई मसला है, you should डिस्कस इन द क्लास एज वेल। हम उसको रिजॉल्व करेंगे, उस पर काम करेंगे एंड वी डू इंशाल्लाह। कल से क्लासेस स्टार्ट हैं, टुमारो इज़ योर फर्स्ट क्लास एंड आई आल्सो मेंशन्ड इन द ग्रुप वी हैव फॉर मंस्टैक डेवलपर्स वी हैव क्लासेस ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। टाइमिंग्स आर 8 to 9 PM और ट्यूसडे एंड थर्सडे को फ्रंट एंड डेवलपर्स की क्लासेस हैं और टाइमिंग जो सी हैं वो भी 8 to 9 PM। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह अभी इस क्लास के बाद ये जो ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है इसके अंदर मैं सेंड करूँगा एक लिंक जो कि होगा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ग्रुप। जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होंगे वो जस्ट उस ग्रुप में मूव कर जाएंगे, बाकी जो मंस्टैक वाले होंगे वो इसी ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, उसका नेम चेंज हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा तो फ्रंट एंड डेवलपर्स उस वाले ग्रुप में मूव कर जाएंगे उसके लिंक पे क्लिक करके। ठीक हो गया, so inshallah this journey goes good and nice to meet to all of you and you all have potential and the things to do all the things. Yes Najiba? सर जैसे कि आपने अभी बताया कि कल मंस्टैक वालों की क्लासेस हैं और ट्यूसडे से फ्रंट एंड वालों की हैं, तो कल कोई टास्क होगा फ्रंट एंड वालों नो के नो लिए? नो नो, टास्क किसी के लिए नहीं होगा। आपको जब कल स्टार्ट करवाना है तो स्टार्ट कल से करेंगे और स्टार्ट के कल मंस्टैक वालों की है और परसों से फ्रंट एंड वालों की। तो हम लोगों की क्लासेस कल से स्टार्ट, आज जस्ट ओरिएंटेशन डे था। ठीक है, जस्ट हाउ नो अबाउट द थिंग्स और आप हमारे रोड मैप के हवाले से। ठीक हो गया, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके टास्क स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। यस अलिशबा चौधरी?
सर इस वीक की क्लासेस शायद पॉसिबल ना हो लेना क्योंकि फाइनल्स चल रहे हैं, ठीक वो होगा, वेडनेसडे को नहीं थर्सडे को एंड होंगे। ठीक हो तो गया। मंथ स्टार्ट की मंडे को है, तो वो फिर शायद मैं ना ले सकूं। वो अब ऐसा कर लेंगे ना, वो क्लास आल्सो क्लास जो सी आल्सो रिकॉर्ड होती है और यूट्यूब पे अपलोड होती है, ठीक है। वो क्लास आप वहाँ से ले लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको चीज़ समझ ना आया तो आप मेरे से वैसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वैसे ही उसके बारे में गाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। जी ठीक कोई है ऐसा सर, मसला नहीं, थैंक यू। आप कोई मसला हो तो आप मुझे पहले ही पर्सनली बता दिया करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको टास्क के अंदर कोई मसला आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, जिस टाइम टास्क शेयर वो होगा ग्रुप के अंदर, आपने मुझे तभी बता देना है कि हम लोगों को ये मसला है, मैं उसी टाइम रिजॉल्व करा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को कोई एमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों ने मुझे एक दिन पहले बता देना कि हम लोग इसके अंदर प्रॉब्लम है, हम लोग इस तरह से नहीं आ सकते, हम लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, वी कंपनसेट विद यू, ठीक है। सो ऑल जी ऑफ ठीक यू अंडरस्टैंड। है। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, जब फाइनल वीक होगा तो मे भी इस तरह हो कि हम टास्क नहीं परफॉर्म कर सकें, तब आपको बता सकते हैं। जी जी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। अभी हमारे थर्ड बैच के कुछ बच्चे हैं जिनका टास्क अभी तक नहीं हुआ, वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, इजी हो गया, करेंगे आप उसको। लेकिन ये है कि कोशिश किया करें कि टाइम पे करें, बट इफ़ यू हैव एनी एमरजेंसी एनी प्रॉब्लम वी कंपनसेट विद यू, ओके। ओके, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह आई विल शेयरिंग द फॉर्म आफ्टर द क्लास इन द ग्रुप, यू शुड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक ऑन दैट ऑलवेज। एंड टू बी ऑनेस्ट फीडबैक, उसमें कोई ऐसा ऐसा मसला नहीं है, कोई आपको पॉइंट वीक नज़र आता है, यू शुड रिकमेंड अस, ओके। आपने बताना है चीज़ को और आपने वहाँ पे डिस्कस करना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई ऑल्सो शेयर द फॉर्म आफ्टर द क्लास इन द ग्रुप एंड एज वेल एज इंशाल्लाह कल से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हैं। एंड नाइस टू मीट टू ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह वी स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।